Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's trainer is Mr. Nasir Makbool. He is Principal Engineer of CM Division and deputed on various projects as Deputy Project Management. Today's topic is concrete lining of irrigation channels. Mr. Nasir Makbool has joined NESPAC in 2005, and since then, he worked on different projects related to hydraulics and irrigation. He acquired master's degree in civil engineering, specialized in hydraulic and irrigation from UET Lahore in 2008. Currently, he is serving on the position of Deputy Project Manager, and also, as I already said, he is a Principal Engineer of CM Division. In the capacity of DPM, he is playing a key role in design implementation and overall management of more than 150 projects under annual development program, as well as public sector development programs of Punjab Irrigation Department. During his tenure, he has developed expertise in design, monitoring, reporting, construction supervision, as well as project management of mega projects, ranging from rehabilitation, remodeling of main canals, canal lining, hydraulic structures, flood protection, and river training works. He has delivered numerous lectures to the executive engineers and subdivision officer in Government Engineering Academy, Punjab. He has also written a research paper titled Remodeling of Upper Chenab Canal, a case study from Pakistan, which was published in the International Journal of Irrigation and Drainage, volume 60, issue 3. So without any delay, I request Mr. Nasir Makbool Sahab, sir, please continue the session. Thank you, sir. Okay, thank you very much for introducing me. And at the same time, I warmly welcome all the participants in today's session. First of all, I would like to share some important features of main project in which I am currently working. It will help in understanding today's topic in a better way. So we at NESPAC are providing engineering services to Punjab Irrigation Department on its various development programs, such as Annual Development Program, Public Sector Development Program, and deposit works of other departments. You all will be surprised to note that currently we are handling more than 150 projects of different types simultaneously under these development programs. Cost of each project ranges from 500 million to 8 billion. The projects involved are of varied nature and complexity. These are spread throughout the territory of Punjab province. Nature of works which we are handling under these projects are rehabilitation and remodeling of main irrigation canals, concrete lining and concrete site protection of distributaries and miners, construction of hydraulic structures such as head regulators, cross drainage structures, spillways, outlets, inlets, as well as bridges. At the same time, we are handling river training, flood protection, and flood restoration works, earthen and concrete gravity dams, drainage network all over in Punjab, and allied structure. Here you see concrete lining is one of the important component among other major works. Our main services on these projects, reporting, assistance in tendering, as well as construction supervision. Now I will try to explain various aspects of concrete lining step by step. So these are the main contents of my today's session. So first step is to perform condition survey. Condition survey is basically the most important activity, mainly performed to identify the problems being faced by the irrigation channels. We can simply say that prior to decide any proposal or any kind of work for the problematic channels, the
foremost activity is to conduct condition do not perform their intended functions, or whenever irrigation channels do not meet their core objectives, then one has to diagnose the real issues and their probable reasons. So main purpose of this activity is identification of problems in each reach, their probable reasons, which in turn help the decision makers to decide the adequate work proposal. Mainly the experts having relevant experience perform such surveys. For conducting such surveys, they visit the problematic channel from head to tail and record existing conditions of each reach and allied structures. So during visit, the experts mainly note the affected reaches of the channel suffering from excessive embedments, berm formation, bank erosion, beds covering, vegetation, freeboard, and obviously full supply levels. Similarly, they examine the affected reaches by excessive cattle trespassing. They physically check the condition of each structure and their hydraulic efficiency. As far as head regulator is concerned, they physically examine its performance, whether it is drawing its authorized discharge or otherwise. They try to explore its real issue through different analysis on existing parameters. At the same time, they confirm whether is there any waterlogged area within the vicinity of that channel, problems associated with the channel passing through thickly populated areas. During visit, they assess the soil properties and availability of requisite materials. What is type of water zone? They whether this channel is population and management issues. At the end, they check tail conditions on authorized discharge, whether the tail is dry or it is short, or what's the problem at tail end on discharge. So with first-hand information, based on the data obtained from the condition survey and from the problems and issues faced by the channel. Please note that concrete lining is mostly proposed for distributaries, minors, and tail reaches, starting from suitable control points having discharge nearly 50 cusecs. For main canals and branch canals, rehabilitation works of different types best suited to each reach are considered. So this is all about condition survey, which actually tells us what we have to do with that problematic channel. So why we do concrete lining? This is the question. So these are these main objectives and outcomes of concrete lining I have listed here. So concrete lining of irrigation channels mainly ensures equitable and sustainable canal water supplies to each outlet, especially at tail ends. It improves hydraulic performance and overall efficiency of irrigation system. So it also controls excessive seepage, it strengthens the bank, it increases the velocity, and it also improves overall environment of the area. It helps in fighting against the prevailing drought conditions. Similarly, it reduces significantly the maintenance cost, breaches, and water theft. And its main advantage is it increases the crop production significantly, and which in turn improves the socio-economic conditions of farmer and other public.
So when it is decided to treat the channel with concrete lining, the next step is to conduct detailed topographic survey and plot the cross sections showing all its existing features. The cross sections should be plotted at suitable intervals. Where there is excessive embayment or where there is widened sections, the cross sections should be plotted at shorter intervals for better estimation. At the same time, it is required to develop the capacity statement. Hydraulic design of irrigation channels mainly depend on capacity statement. We can simply say that more accurate the capacity statement is, more efficient would be the hydraulic design of irrigation channels. Capacity statement actually furnishes us required discharge of each reach and total discharge requirement at head of the channel. So for preparation of capacity statement, we need to summarize data of each outlet, its location, its type, and obviously its authorized discharge. So keeping in view the data of each outlet and of taking channels from the concerned channel, the whole channel may be divided into adequate reaches. The selection of each reach or change in section is usually carried out by considering various aspects. We can select the adequate reach through engineering judgments. We can change the reach where cluster of outlets exist. Similarly, we can change the reach from existing control point. Control point mean any structure such as cross regulator, bridges, and other such type of structures. We can say it's a control point. At the same time, we can change the reach just downstream of any off-taking channel. So practically within the same reach, हर आउटलेट के बाद हमारा वाटर लेवल जो है स्लाइटली डिप्रेस करता है, ये बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए. सो जो भी रीच हम सिलेक्ट करें उसमें इस बात को हम कंफर्म कर लें कि उसमें जितने भी आउटलेट्स हैं उनका वर्किंग हेड डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए विद स्लाइट वेरिएशन इन वाटर लेवल. और ये वर्किंग हेड की इंफॉर्मेशन हमें उसके आउटलेट्स के डेटा से मिल जाएगी. ठीक है. For preparation of capacity statement, यहाँ मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल शो की है just for understanding of the participants. Otherwise ये काफी लेंथी भी होती है. एक सिंपल सी चैनल है जिसकी टोटल 18 RDs हैं. इसको हमने 3 रीचेस में डिवाइड किया है. और सिलेक्शन ऑफ रीच, ऑब्वियसली हमने तमाम आउटलेट्स के डेटा को समराइज किया, चेक किया और इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमने इन रीचेस की सिलेक्शन की है. और इस कॉलम में उस हर रीच की लेंथ शो हो रही. इसी तरह इन द नेक्स्ट कॉलम एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ईच आउटलेट इज शोन हेयर. जो भी रीच हमने सिलेक्ट की है उसमें हर आउटलेट जिधर भी एग्जिस्ट कर रहा है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन इधर मेंशन की हुई है. इसी तरह हर आउटलेट का ऑथोराइज्ड डिस्चार्ज इधर हमने मेंशन किया है. ठीक है. ये हम चूंकि इधर एग्जिस्टिंग इरिगेशन सिस्टम को डील कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग इरिगेशन सिस्टम में हर आउटलेट का डिस्चार्ज डिफाइंड है, अप्रूव्ड है और सैंक्शनड है. तो हमें उसी फिगर को लेकर प्रोसीड करना पड़ता है. अदरवाइज हर आउटलेट के डिस्चार्ज को कंप्यूट करने के लिए देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी उसकी देखनी पड़ती है, उसका CCA देखना पड़ता है, क्रॉपिंग पैटर्न को देखना पड़ता है, क्रॉपिंग इंटेंसिटीज को देखना पड़ता है और उसके अलावा फिर हमें मेन उसकी क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट को कंप्यूट करना पड़ता है और वाटर अलाउंस को देखना पड़ता है. इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए आउटलेट के डिस्चार्ज को हम कंप्यूट कर सकते हैं. ठीक है. अदरवाइज जो एग्जिस्टिंग इरिगेशन सिस्टम है इसमें तमाम आउटलेट्स का डिस्चार्ज डिफाइंड है और उन्हीं फिगर्स को लेकर हम फर्दर आगे चलते हैं. देन जो रीच हमने सिलेक्ट की है उसका टोटल डिस्चार्ज इधर हमने कंप्यूट किया है. अगले स्टेप This figure is showing summation of discharge of each outlet within that reach, and this is the figure
which is showing the accumulated discharge of next reach 9.14. He brought forwarded here. Then we have computed total simply adding these two जो reach जो भी select किया है उसके हमने losses को compute किया. Losses की computation हम इन दो फार्मूला से कर सकते हैं. ये दोनों फार्मूला लिटरेचर में given है. We can use any of the accumulated value of discharge, जिसमें simply losses को हमने ऐड किया total discharge में, और ये हमारे पास total accumulated figures which is have been computed here. Mostly capacity statement की computations हम tail reaches से start करते हैं, क्योंकि हमें हर reach में downstream reach का discharge add करना पड़ता है, तो इसलिए हमारे पास downstream reach में discharge की value पहले से known होनी चाहिए. तो इसमें अब next reach के ही outlets या उसके tail clusters के discharge को हमने लिया और उसमें losses ऐड किए, ये वैल्यू कंप्यूट की, यही वैल्यू नेक्स्ट रीच में इधर हमने ब्रॉट ओवर कर ली. इन द सेम वे इस रीच का डिस्चार्ज कंप्यूट किया, ये वैल्यू अपर रीच में आ गई, और इसी तरह ये टोटल वैल्यूज हमारे पास निकल आई. अब इस कैपेसिटी स्टेटमेंट इज शोइंग रिक्वायर्ड डिस्चार्ज ऑफ ईच रीच एंड टोटल डिस्चार्ज रिक्वायरमेंट एट हेड ऑफ द चैनल. इट मींस दैट 14.46 cubic is required to feed all these outlets. After developing capacity statement, we proceed towards its design. So for detailed design of concrete lining, we had developed comprehensive design criteria for wide range of discharges and other parameters. This criteria is basically based on extensive brainstorming sessions within the experts, practical experiences, consideration of latest literature and modern techniques. The client or irrigation department had already approved this criteria for implementation. We had implemented it in numerous channels. Still, we are implementing it, and it proved a success story. It will surely be helpful for the designers. यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि मुख्तलिफ irrigation channels जिनकी cumulative length more than 1000 kilometers है all over in Punjab, उनकी लाइनिंग अब तक हम करवा चुके हैं by using this criteria. और इस वक्त भी हम लोग more than 70 schemes या 70 सब projects of concrete lining हैंडल कर रहे हैं, जो कि इस वक्त कुछ डिज़ाइन फेज में और कुछ इम्प्लीमेंटेशन फेज में. और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूंगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने इस ईयर 3.5 बिलियन रुपीस अपने ADPA में एलोकेट किए हैं जस्ट स्पेसिफिकली फॉर कंक्रीट लाइनिंग ऑफ इरिगेशन चैनल्स, और उनकी यूटिलाइजेशन अंडर आवर कंसल्टेंसी इस वक्त इन प्रोग्रेस है. यहाँ पे मैंने उस अप्रूव्ड क्राइटेरिया के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स आपको मैं शो करूँगा, और इसमें आप देखेंगे कि क्या क्या मेन चीज़ हैं. Again, distributaries, miners or irrigation channels or tail reaches starting from suitable control point can be lined having discharge 50 cusics irrespective of their sweet or saline zone. In way back, saline zone के में कुछ लोग पहले कहते थे कि उसके लाइनिंग के कुछ लोग उसकी फेवर में थे और कुछ लोग उसके अगेंस्ट थे. इसी तरह स्वीट वाटर जोन में भी कुछ कंसिडरेशंस थी कि लाइनिंग होनी चाहिए और कुछ कंसिडरेशन थी कि नहीं होनी चाहिए. लेटर ऑन इस पे काफ़ी रिसर्चेज हुई और स्टडीज़ हुई, स्पेशली सीपेज थ्रू कंक्रीट लाइनिंग, इस पे काफ़ी स्टडीज़ और रिसर्चेज हुई. इन रिसर्चेज की स्टडीज़ की बेस पे और स्पेशली अनक्वान्टिफाइड बेनिफिट्स ऑफ कंक्रीट लाइनिंग को देखते हुए इरिगेशन डिपार्टमेंट ने अब ये डिसाइड कर दिया है कि
these miners can be lined irrespective of sweet or saline zone. So we can take up concrete lining in any of zone, irrespective of brackish zone or of sweet zone. इसी तरह अप्रूव्ड क्राइटेरिया में एक चीज अब उन्होंने फिक्स कर दी है कि जो हमारा नॉन पेट्रोल बैंक है उसकी मिनिमम विड्थ 12 फीट होनी चाहिए. जितनी मर्जी माइनर हो, छोटी से छोटी माइनर या छोटे से छोटे चैनल की भी जो हमारा नॉन पेट्रोल बैंक है उसकी मिनिमम विड्थ 12 फीट होनी चाहिए, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ ROW. Channels should be lined in principle between suitable control points. What does it mean? कि channels को इधर या तो हम उसको head to tail line करें, otherwise किसी suitable control point से उसका start करें और उसको end तक लेके जाएं. ऐसे नहीं होना चाहिए कि किसी भी point से lining शुरू कर लें और कहीं भी उसका end कर दें. It should be started from suitable control point. In the same way, velocity की range इसमें given है 1.5 feet minimum है और 4 feet up to maximum value. Manning's formula may be used for computation purpose, or in that formula we can use Manning roughness factor for concrete lining, PCC concrete lining 0.016. Hydraulic drain line must be covered with minimum 2 feet cover. ये भी इसमें mandatory requirement है. In principle, trapezoidal section may be provided for PCC lining. There are other sections as well, such as rectangular section or semicircular section. But keeping in view efficiency and easiness in execution as well as economy, we can provide trapezoidal section, or trapezoidal section is preferable than other section due to these aspects. इसी तरह इस क्राइटेरिया में बहुत से पैरामीटर्स को डिफाइन किया बहुत से पैरामीटर्स इसमें गिवन है. कुछ पैरामीटर्स डिजाइन आवर मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन, स्पेशली हमारा जो अगर हम इन पैरामीटर्स को रियल सेंस में यूज करें तो हमारा हाइड्रोलिक डिजाइन एफिशिएंट हो सकता है. इसमें विड्थ ऑफ कंक्रीट लिप should be minimum 1 feet for channels having discharge up to 200 cubic, and at the same time it should be of 2 feet for channels having discharge more than 200 cubic. Thickness of lining is defined here. Minimum thickness should be 3 inches for channels having discharge up to 300 cubic, and it should be of 4 inches for channels having discharge above 300 cubic. And these thickness ranges are for plain areas in Punjab. In hilly areas, we have to perform different analysis for adequate thickness, keeping in view stability. Usme hum, in some cases, we have to provide reinforcement as well in hilly terrains. But for plain areas, these values are suggested. Spacing of construction joint for 3-inch thickness lining should be 10 feet center to center, and for 4-inch thickness lining, spacing may be provided at 15-inch center to center. Freeboard should be minimum 1 feet for channels having discharge less than 50 cubic. Similarly, minimum freeboard should be 1.5 feet for discharge range 50 to 200 cubic. इसमें 6-inch additional freeboard provide किया जाता है earthen section. The minimum freeboard in any channel should be of 1.5 feet. It means 1 feet in lined portion and 6 inches in earthen portion. ये मैं आगे later on आपको explain करूँगा इसका section. Side slope it can provide slope 1:1 for channel having discharge less than more than 50 cubic. We can adopt side slope 1.5:1. B और D इधर इसकी ranges given है, इसको मैं आगे separate आपको explain करूँ. In the same way, in different ranges, bed width की given है,
जिस पे अदर पैरामीटर्स सेटिस्फाई होंगे। विड्थ ऑफ सर्विस रोड 12 फीट मिनिमम है फॉर चैनल्स हैविंग डिस्चार्ज लेस देन 100 क्यूसेक, और अदर रेंजेस भी इसमें गिवन है। इसमें एडिशनल 5 फीट डाउल प्रोवाइड किया जाता है, टोटल विड्थ देन 17 फीट हो जाएगी। Now I will explain importance of BOD ratio. For given discharge and slope, a channel design can have various sectional dimensions. We can design channel as deep and narrow channel. This is deep. Or we can design as shallow and wide channel. Look at these two channels. Both channels have same cross-sectional area, same discharge passing capacity, same full supply levels, and same longitudinal slope. So out of these two options, which one is preferable and why? This is the question. ये दो sections हैं, इनकी discharge passing capacity भी same है, इनका cross sectional area भी same है, full supply level जो कि governing factor है outlets के लिए, command area के लिए वो भी same है, और इसकी longitudinal slope भी है. So out of these two sections, which one is preferable? So look at this section. Actually, the velocity calculated through Manning's formula is depth averaged velocity. It doesn't mean that the computed velocity will remain same within the entire section. It actually varies considerably within the section. Its value is maximum here at this location, which is about 0.8 times depth. And in the remaining section, it varies accordingly, and its value is minimum near the surface of the channel. Similarly, look at these two channels or sections. Both sections are showing behavior of stream flow and variation in velocity. Here you see, again, both sections have same cross-sectional area and same discharge passing capacity, same longitudinal slope, and same full supply level. Here in shallow and wide section, its wetted perimeter is more than deep and narrow channel. So more wetted perimeter mean more friction and more area of reduced velocity. So for silt-free water, any of these two sections have no problem. But as you know, we have to deal with silted water. So for silted water, shallow and wide channels are most likely to silt up due to reduced areas of velocity and greater area of friction as compared to deep and narrow channel. So for silted water, we need to give extreme care while selecting a suitable section. We should give due consideration on BOD ratio. Moreover, in deep and narrow channel, the intermixing of high velocity currents do not allow deposition of silt particles, so it is less likely to be silted up. So from out these two sections, obviously deep and narrow channel is preferable than shallow and wide channel. Now I will try to explain. The only data available is reach-wise discharge from capacity statement, which I have explained earlier. The other sectional dimensions are BD and slope, and width, depth, and water surface flow. So these required variables are interrelated. So we have to assume suitable values and for completion of our design, and we need further iterations to have adequate values of required variables. So as you know, we are dealing with existing irrigation system. So in case of existing channel, initially we use the existing value of depth and water surface slope and assume the value of B, keeping in view BOD ratio.
Please note that in case of existing channel, we cannot propose remarkable changes in depth. If we increase the depth, it may compromise modularity of head regulator. Similarly, if we propose decrease or if we decrease the depth, it may compromise the command and affect the efficiency of outlets. So it is advisable to initially use the existing value of water depth and play with bed width. Although we can propose minor changes in water depth, keeping in view existing constraints and some adjustment in bed levels. So by selecting suitable values of required variables, we calculate area flow through this formula, wetted perimeter, hydraulic radius, and then we compute its velocity. After that, we'll calculate required discharge. The calculated discharge must be equal to the required discharge, and velocity should be in the range set by the design criteria. If they differ considerably, we need to repeat the whole procedure span till end and up till when our required results are achieved. Again, ये एक सिंपल सी एग्जांपल हाइड्रोलिक डिजाइन की इधर मैंने शो की है. ये वही चैनल है जिसकी इनिशियली हमने कैपेसिटी स्टेटमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन की थी. ये उसकी फर्स्ट रीच है, ये उसकी रीच लेंथ है. अगेन ये उसका रिक्वायर्ड डिस्चार्ज है उस रीच का जो कि हमने कैपेसिटी स्टेटमेंट में कंप्यूट किया. ये वाटर सरफेस स्लोप ये हमने एग्जिस्टिंग डेटा से ली और साइड स्लोप हमने 1:1 इधर एज्यूम की है बिकॉज डिस्चार्ज इज लेस देन 50 cubic, so we can provide side slope 1:1. Manning's roughness factor 0.016 और देन ये फुल सप्लाई डेप्थ ये भी हमने इनिशियली एग्जिस्टिंग डेटा से ही लिया है. जो एग्जिस्टिंग उसकी वाटर डेप्थ है वो 1.8 फीट है इस सेक्शन. फिर हमने एज्यूम की है बेड विड्थ इनिशियली 2.25 फीट जिसकी BOD रेशियो 1.22 है which is suitable and within the range. Then we computed cross-sectional area, wetted perimeter, hydraulic radius, velocity, and finally we computed its total discharge. Now you see the computed discharge is almost equal to the required discharge and velocity is also within the range. So it means that we can, and BOD ratio is also adequate. So it means that we can use these selected parameters. In the same way, remaining reaches के हमने कंप्यूटेशंस की और उनके डिस्चार्ज को हमने सेटिस्फाई करवाया. रिपीटेड रेपिटेशन से बचने के लिए वर्कशीट में हम ये गोल सीक का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं. बाय यूजिंग दिस फंक्शन हमारे पास हम जो बी की वैल्यू एडिक्वेट हमें फौरी तौर पे मिल जाएगी. यहाँ पे मैं आपको एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल शो करवाऊंगा. ये इट्स अ थर्मल डिस्ट्रीब्यूटरी. आई होप ये एक्सेल की शीट आप लोगों को शो हो रही होगी. It's a thermal distributary. Its total length is 97 RDs and its total discharge is 269 cubics. It exists in district Kasur. Initially इसकी हमने capacity statement develop की है by using the same procedures and same principles which I have explained earlier. इधर आप देखेंगे कि 700 फीट पे हमें एक कंट्रोल पॉइंट मीटर फ्लूम की सूरत में मिला. So इस control point के just downstream of this control point we have changed the reach. Similarly next reach में भी अगर हम देखें तो 17 RD पे हमें एक off taking channel मिल रही है. Its name is Kasur Manor and its discharge is 85 cubic. So just downstream of this off taking channel we have changed the reach. In the same way 25 RD पे हमें एक सेकेंड एक और ऑफ टेकिंग चैनल मिल रही है
और उसके बाद just downstream of that off taking channel we have changed the reach, और इसी तरह इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए और तमाम आउटलेट्स के डेटा को समराइज करते हुए एनालाइज करते हुए हम रिमेनिंग रीचेस को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन इधर आउटलेट का की एग्जैक्ट लोकेशन गिवन है और उसका CCA भी गिवन है हर आउटलेट्स का, एंड देन हर आउटलेट का ऑथराइज्ड डिस्चार्ज और ऑथराइज्ड डिस्चार्ज ऑफ टेकिंग चैनल इज मेंशन्ड हियर। उसके बाद उस सिलेक्टेड रीच का टोटल डिस्चार्ज कंप्यूट किया गया है, टॉर्शन लॉसेस कंप्यूट किए हुए हैं, और फिर एक्यूमुलेटेड डिस्चार्ज ऑफ ईच रीच। इस तरह ये कैपेसिटी स्टेटमेंट इस चैनल की फाइनल हमने की है। नेक्स्ट स्टेप, hydraulic design of each reach has been carried out by using approved design criteria. हर रीच का हाइड्रोलिक डिजाइन इस शीट में हम लोगों ने फाइनल किया है और इसमें एग्जिस्टिंग पैरामीटर्स को यूज किया है, वाटर सरफेस स्लोप और एग्जिस्टिंग जो है हमारे वाटर डेप्थ, वो भी एग्जिस्टिंग वैल्यूज कंसीडर किया है विद स्लाइट वेरिएशंस। एट दी एंड इसमें जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि इसमें एट दी एंड हमने बेड लेवल्स और फुल सप्लाई लेवल्स को भी मेंशन किया हुआ। यहाँ एक बात आप नोट कर लें कि जो फुल सप्लाई लेवल्स एग्जिस्टिंग चैनल्स के केस में प्राइम इंपॉर्टेंस रखते हैं, सो इनकी सिलेक्शन करते हुए हमें बहुत केयरफुल होना पड़ता है। इसकी सिलेक्शन के लिए बेस्ट अप्रोच ये है कि हम अप्रूव्ड एल सेक्शन है उसमें लास्ट डिजाइन फुल सप्लाई लेवल हमें मिल जाएगा। इसी तरह जो हमने डिटेल टोपोग्राफिक सर्वे कंडक्ट किया है और क्रॉस सेक्शंस उसके डेवलप किए हैं और हमने उसमें हर रीच में फुल सप्लाई लेवल्स को ऑब्जर्व किया हुआ है विद फ्रेश सर्वे, उस फुल सप्लाई लेवल को भी हम कंसीडर करें और वी नीड टू कंपेयर बोथ दीज वैल्यूज। द हायर वैल्यूज फ्रॉम दीज टू वैल्यूज शुड बी कंसीडर्ड इन प्रपोज्ड डिजाइन। उस फुल सप्लाई लेवल को जो भी हायर वैल्यू है हम फर्दर भी थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हमें मॉड्यूलरिटी ऑफ हेड रेगुलेटर में थोड़ी सी गुंजाइश अगर मिल जाए। सो इसके लिए फर्स्ट वी नीड टू चेक द मॉड्यूलरिटी ऑफ हेड रेगुलेटर। ठीक है, व्हाट इज द मॉड्यूलरिटी? मॉड्यूलरिटी सिंपली इसको सिंपली चेक किया जा सकता है। उसको चेक करने के लिए हमारे पास जो है वो पेरेंट चैनल डेटा का फुल सप्लाई लेवल होना चाहिए। पेरेंट चैनल डेटा का फुल सप्लाई लेवल एंड कंसर्न चैनल का फुल सप्लाई लेवल, इन दोनों का डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। दैट डिफरेंस शुड बी ग्रेटर देन 0.2 times H. H is the depth of water above the crest of that concerned head regulator of that channel जो हम जिसको डिजाइन करने जा रहे हैं। अगर मॉड्यूलरिटी हमने FSL को रेज करते हुए इस बात को हमें ध्यान रखना है कि मॉड्यूलरिटी किसी सूरत भी कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। अगर मॉड्यूलरिटी हमारी कंप्रोमाइज हो रही है तो इट मींस कि हमारा हेड रेगुलेटर जो है वो अपना डिस्चार्ज रिक्वायर्ड ऑथराइज्ड डिस्चार्ज ड्रा ही नहीं करेगा। तो फाइनली जो फुल सप्लाई लेवल्स जो हमने सिलेक्ट करने हैं उसमें हमें लास्ट डिजाइन फुल सप्लाई लेवल को देखना है, एग्जिस्टिंग फुल सप्लाई लेवल को देखना है, मॉड्यूलरिटी ऑफ हेड रेगुलेटर को देखना है। इन तीनों एस्पेक्ट्स को देखते हुए जितनी इंप्रूवमेंट हम फुल सप्लाई लेवल में कर सकते हैं वो हमें कर लेनी चाहिए और वही हमें प्रपोज डिजाइन में लेके चलना चाहिए। क्योंकि जब हम एग्जिस्टिंग अर्दन चैनल की लाइनिंग करने जा रहे हैं हमें उसके हाइड्रोलिक पैरामीटर्स में जितनी इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं वो हमें कर लेनी चाहिए। और FSL जितना इम्प्रूव्ड होगा अर्लियर FSL से उतना ही हमारे आउटलेट्स एफिशिएंट डिस्चार्ज ड्रा करेंगे और हमारा ओवरऑल कमांड जो है वो बेहतर होगी। इसमें आप देखें कि 0 RD पे हमने इसका FSL इन तमाम एस्पेक्ट्स को देखते हुए ये फाइनल किया। ठीक है, और उसके बाद फिर एट द एंड ऑफ रीच हमने FSL कंप्यूट कर लिया बाय अप्लाइंग लेंथ एंड स्लोप ऑफ वाटर सरफेस स्लोप। उन दोनों को यूज करते हुए उस रीच के एंड पे हमने फुल सप्लाई लेवल कंप्यूट कर लिया। इसी तरह हमने ये बेड लेवल एट द स्टार्ट ऑफ रीच कंप्यूट किया है बाय जस्ट subtracting the water depth, where is water, this depth from full supply level। और इसी तरह at the end of reach हमने bed level compute किया। In the same way, full supply levels and bed levels of each reach have been computed here।
ये जस्ट बताने का मकसद ये था कि ये जो फुल सप्लाई लेवल्स हैं और बेड लेवल्स हैं, दीज आर ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस इन प्रपोज्ड डिजाइन एंड दीज वैल्यूज आर हेल्पफुल इन डेवलपिंग द एल सेक्शन. जब हम हाइड्रोलिक डिजाइन अपना इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे तो देन नेक्स्ट स्टेप हमारा है डेवलपमेंट ऑफ एल सेक्शन. एल सेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ इरिगेशन चैनल्स, और ये डॉक्यूमेंट ही यूज होता है मोस्टली साइट पे फॉर इम्प्लीमेंटेशन. सो इसकी प्रिपरेशन के लिए इसको बहुत केयरफुली प्रिपेयर करना चाहिए, और इसकी प्रिपरेशन के लिए जो भी इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस हैं, जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं और जिन पैरामीटर्स को और जिन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हमें ज़हन में रखना चाहिए वो मैंने इधर शो किए हैं और मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूँ. अगेन जो एल सेक्शन को फ्रेम करने के लिए हमें जो उसका कमांड एरिया है वो दैट मस्ट बी इम्प्रूव्ड और एटलीस्ट रिमेन द सेम. अगेन आई विल रिपीट, जो भी फुल सप्लाई लेवल हमने सिलेक्ट किए हैं प्रपोज डिजाइन में वो थोड़ी बहुत इम्प्रूव्ड फॉर्म में होने चाहिए. जी, उसमें अगर हम रेजिंग कर सकते हैं, अगर हमारे पास गुंजाइश है तो वी मस्ट रेज दोज एफएसएल्स टू हैव बेटर कमांड. बट while raising those FSLs, our modularity should not be compromised in any case. Otherwise, whichever full supply levels, वो level हमें use करना चाहिए, ये at least ये use करना चाहिए. Otherwise, हम अगर improve कर सकते हैं तो उसको improve करना चाहिए. At the same time, जितने भी उसमें structures हैं channel में, उन स्ट्रक्चर्स को उनकी रिस्पेक्टिव लोकेशंस पे शो करना चाहिए एल सेक्शन पे. आउटलेट्स हैं, क्रॉस रेगुलेटर्स हैं, फॉल स्ट्रक्चर्स हैं, ब्रिजेस हैं, ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन फर्दर करता हूँ. और एल सेक्शन को फ्रेम करने से पहले मेक श्योर कि हमारा जो टोपोग्राफिक सर्वे है वो कंप्लीट हो चुका हुआ हो और हमारे क्रॉस सेक्शन जो हैं होनी चाहिए. Existing features mean existing bed levels, existing full supply levels, existing bed width and existing slope और उसके existing banks की conditions, ये तमाम parameters हमारे पास इन existing cross sections through fresh survey ये होने चाहिए. उस डेटा को यूज करते हुए हमें LCAS design data and existing data should be clearly shown on the L section. जो हम डिजाइन प्रपोज किया है, हमने जो डिजाइन फाइनल किया है उसमें हमारे जितने भी डिजाइन पैरामीटर्स हैं वो उसकी बेड विड्थ है, वाटर डेप्थ है, स्लोप है, साइड स्लोप्स हैं, टॉप स्लोप है और उसके अलावा उसकी टोपो और जितने भी पैरामीटर्स फर्दर हैं वो उस तमाम प्रपोज डेटा में हमें शो करने हैं. इसी तरह लास्ट डिजाइन डेटा व्हाट डज इट मीन, जो हमारा अप्रूव्ड एल सेक्शन है other than L section, उसमें approved data हमें मिल जाएगा. That will be the last design data. और existing data obviously on the basis of fresh survey, ये तीनों datas को clearly L section पे show होना चाहिए. At the same time, proposed water levels and last design water level, इनकी graphical representation होनी चाहिए L section में with different colors. और benchmarks should be closed at each point simply. और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो एल सेक्शंस में मोस्टली मिसिंग होती है, दैट इज डेटा ऑफ पेरेंट चैनल. जिस चैनल की भी हम लाइनिंग करने जा रहे हैं उसके पेरेंट चैनल का डेटा जहाँ से वो ऑफ टेक कर रही है वो डेटा एल सेक्शन पे एक कॉर्नर पे शो होना चाहिए. उसमें फुल सप्लाई लेवल उस पेरेंट चैनल के अदर को चेक करने के लिए, इसी तरह अदर डिजाइन कंसिडरेशंस को चेक करने के लिए. At the same time, data of regulation structure ये भी मोस्टली मिसिंग होता है सेक्शन में. जो चैनल हम लाइनिंग करने जा रहे हैं उसका अपनी जो भी रेगुलेशन अरेंजमेंट है इन शेप ऑफ हेड रेगुलेटर और इन शेप ऑफ फ्री फ्लो, वो अरेंजमेंट उसका डेटा इधर होना चाहिए. अदरवाइज हम उस चैनल की डेटा अगर नहीं होगा तो मॉड्यूलरिटी भी चेक नहीं कर सकते और उसका फर्दर डिजाइन में उस डेटा हेल्पफुल होता है वो भी हमें प्रॉब्लम हो जाएगी. NSL data obviously should be shown in distinct colors. ये एक सिंपल सेल सेक्शन मैंने इधर शो किया just for understanding. Here you see
ये इसकी RDs हैं और ये कंटिन्यूस हैं आगे, और ये इसका इनिशियली लास्ट डिजाइन डेटा है जिसमें तमाम अप्रूव्ड डेटा उन लास्ट अप्रूव्ड एल सेक्शन पे गिवन होता है। इसमें ये वाटर लेवल, फुल सप्लाई लेवल जो मैंने पहले एक्सप्लेन किए हैं ये भी इधर शो हो रहे हैं, ठीक है। और उसका अर्लियर डिजाइन डेटा सारा शो हो रहा है, जिस बेसिस पे वो डिजाइन हुई है वो सारा डेटा इधर शो हो रहा है। इन द सेम टाइम एग्जिस्टिंग डेटा ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेश सर्वे वो इधर शो किया गया है, हर इंटरवल पे 1000 फीट पे किया गया। हम इस इंटरवल को और शॉर्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह एट द सेम टाइम प्रपोज डेटा जो हमने डिजाइन किया है वो सारा इधर मेंशन्ड है। इधर आप फुल सप्लाई लेवल्स को कंपेयर कर सकते हैं। प्रपोज फुल सप्लाई लेवल जो आपने फिक्स किए हैं एग्जिस्टिंग फुल सप्लाई लेवल के साथ आप कंपेयर करें, और लास्ट डिजाइन फुल सप्लाई लेवल्स के साथ आप कंपेयर करें। इधर से आपको इजीली आइडिया हो जाएगा कि जो वैल्यूज हमने प्रपोज की हैं that are adequate or we need to change those values for better command. At the same time, इस डेटा की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऊपर शो की गई है विद डिफरेंट कलर्स, और ये इधर स्ट्रक्चर्स शो हो रहे हैं। रेगुलेटर है, ब्रिजेस हैं, और भी जितने भी स्ट्रक्चर्स इसमें आएंगे हर लोकेशन पे वो स्ट्रक्चर्स शो हमें करने चाहिए। और ये आउटलेट्स जिस लोकेशन पे जो आउटलेट है वो भी इधर शो हो रहे हैं। इस कॉर्नर पे ये पेरेंट चैनल डेटा मेंशन्ड है, और ये अक्सर मिसिंग होता है हेल्थ सेक्शंस पे, और इसकी प्राइम इंपॉर्टेंस है और इसको हमें मस्ट इधर शो करना चाहिए। इसी तरह डेटा ऑफ रेगुलेशन स्ट्रक्चर है वो इधर हमने शो किया, और इस तरह से एल सेक्शन ये आगे कंटिन्यूस है क्योंकि स्पेस कंस्ट्रेंट थी। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट फीचर इधर शो कर दी। ये इसी तरह आगे फर्दर कंटिन्यूशन में कंप्लीट होता है। जितनी भी चैनल की लेंथ है उसको हम हर RD के ऊपर उसके डेटा को मेंशन करते हैं, और जिधर जो स्ट्रक्चर है और जो भी उसके पैरामीटर्स हैं तमाम डिटेल्स इस लॉन्गिट्यूडिनल प्रोफाइल में शो की जाती है, और यही डॉक्यूमेंट साइट पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज होता है। एट द सेम टाइम एल सेक्शन के साथ साथ जो क्रॉस सेक्शंस को डेवलप करना है उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स भी मैंने इधर लिख दिए हैं, जो कि मोस्टली हमारे डिजाइनर्स और हमारे जो लोग हैं वो उसमें इन डेटास को इतना से इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन हैं जो हर क्रॉस सेक्शन के अंदर होनी चाहिए। एग्जिस्टिंग डेटा बेस्ड ऑन फ्रेश सर्वे एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स, उसमें बेड लेवल हैं, फुल सप्लाई लेवल्स हैं, बैंक्स लेवल्स हैं, बैंक्स की विड्थ्स हैं, NSLs हैं। ये क्लियरली डेटा आपका हर क्रॉस सेक्शन के ऊपर शो होना चाहिए। प्रपोज डेटा रिस्पेक्टिव रीच जो हमने डिजाइन किया है वो भी हम उस पर शो कर सकते हैं, कीपिंग इन व्यू कि उसमें जितनी स्पेस है इंपॉर्टेंट डेटा ये वाला उसमें भी शो हमें करना चाहिए। इसी तरह हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन इज एन इंपॉर्टेंट फीचर दैट मस्ट बी शोन ऑन क्रॉस सेक्शन। राइट ऑफ वे उसमें शो करें, और उसमें ट्री लाइंस को शो करें, एग्जिस्टिंग ट्रीज उनको भी शो करें। अगर हमने उसकी प्लांटेशन करनी है और वो किस लोकेशंस पे करनी है दैट शुड बी शोन ऑन द क्रॉस सेक्शन। Areas of cut and fill should be differentiated with different colors. Or again important factor, compatibility of data between L section and respective cross section. L section के ऊपर जो डेटा जिस लोकेशन पे है उसी बस में मैच करने चाहिए। ये मोस्टली ये डेटा आपस में मैच नहीं कर रहे होते, तो उस एम्बिग्युइटी को खत्म करना चाहिए। इसी तरह एरियाज ऑफ कट एंड फिल हम उसमें कंप्यूट कर सकते हैं क्रॉस सेक्शंस में, और वैल्यूज हम नीचे लिख सकते हैं, दैट विल बी हेल्पफुल इन एस्टिमेशन। एंड सेपरेट क्रॉस सेक्शंस फॉर एम्बेड साइट्स और एट कैटल घाट साइट। कैटल घाट मीन जिधर बहुत वाइडेंड सेक्शंस हैं उन पे हमें शॉर्टर इंटरवल्स पे क्रॉस सेक्शंस को प्लॉट करना चाहिए, और वो उसके सेक्शन क्रॉस सेक्शंस भी सेपरेट होने चाहिए। ये टिपिकल क्रॉस सेक्शन है जिसमें ये फीचर्स ऑलमोस्ट शो हो रहे हैं। ये नॉन पेट्रोल बैंक एज आई अर्लियर एक्सप्लेन्ड दैट शुड बी ऑफ 12 फीट। इट्स अ पेट्रोल बैंक जिसमें ये मिनिमम 12 फीट है और 5 फीट डबल है, और ये इसकी हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन शो हो रही है फ्रॉम फुल सप्लाई लेवल, दैट मस्ट बी शोन। ये तो टिपिकल है, लेकिन हर क्रॉस सेक्शन पे जो रिक्वायर्ड उसकी जो बनती है वो हमें शो करनी चाहिए। और ये जो हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन दैट शुड बी कवर्ड मिनिमम 2 फीट। Then lining thickness should be of minimum 3 inch PCC lining है,
और इसकी स्ट्रेंथ मिनिमम 3000 PSI होनी चाहिए। और लाइनिंग के अंडरनेथ हम प्लस्तर की लेयर प्रोवाइड करते हैं। 1.5 इंच उसकी थिकनेस है और इसकी रेशो एडिक्वेट रेशो 1:6 इज एडिक्वेट। और ये प्लस्तर हम प्रोवाइड करते हैं जस्ट एक्ट्स एज अ ब्लाइंडिंग लेयर, पुलिंग लेयर। और एट द सेम टाइम ये इधर इसके प्लान में ये प्रोफाइल शो हो रही है। इट्स अ कंक्रीट प्रोफाइल, इट्स डायमेंशन इज 6 इंचेस बाय 3 इंचेस। और ये प्रोवाइड की जाती है हर कंस्ट्रक्शन जॉइंट के नीचे, यानी एवरी 10 फीट पे हम ये कंक्रीट की प्रोफाइल प्रोवाइड करते हैं। और हमारे पैनल्स दोनों पैनल का स्टार्ट भी इस प्रोफाइल से होता है और एंड भी इसी प्रोफाइल पे होता है। और ये फर्दर जॉइंट्स की डिटेल है। और इसमें हम डाइवर्शन चैनल, अगर हमारी पेरिनियल चैनल है तो उसमें हम डाइवर्शन चैनल भी साइमल्टेनियसली डिजाइन करते हैं और ये उसका सेक्शन शो हो रहा है लाइनिंग के साथ। ये मैं आगे आपको फर्दर उसकी एग्जीक्यूशन मेथोडोलॉजी में एक्सप्लेन करता हूँ। ये उसकी रेल है, जरा ज्यादा उसमें एलेबोरेट की गई है। जो हमारा एक्सपेंशन जॉइंट है ये हम प्रोवाइड करते हैं एवरी 100 फीट लेंथ पे। और उसकी डेप्थ, इसमें जो ये जॉइंट फिलर है, सॉरी, ये इसमें जॉइंट फिलर है 1:2:2। और इसी तरह जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट है वो उसकी डायमेंशन 1/2 इंचेस बाय 1 इंचेस है। और इसमें जॉइंट सीलेंट है 1:2:3। और एक्सपेंशन जॉइंट के टॉप पे भी हम 1 इंच पे जॉइंट सीलेंट प्रोवाइड करते हैं। और ये इसी तरह इसका जो अर्दन बैंक है उसकी डायमेंशन शो हो रही सारी की। और कंपैक्शन उसकी मिनिमम 90% होनी चाहिए। मैं फर्दर भी आपको, ये एक हेडलाइन शो हो रही है, ये एग्जिस्टिंग चैनल की कंडीशन है। जिधर मैं कर्सर फेर रहा हूँ आप एग्जिस्टिंग देख। और इस चैनल की हमने लाइनिंग Is it okay? Yes, sir. Okay. Hello? Okay now, sir. Okay, okay. Okay, I will continue. Can you share your slides, please? Thank you. Sorry, स्क्रीन अब थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है। मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन।
ये मैं क्रॉस सेक्शन एक्सप्लेन कर रहा था, ये एक्चुअल क्रॉस सेक्शन है जो कि इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है साइट पे भी। इसमें ये तमाम फीचर्स शो हो रहे हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। ये एग्जिस्टिंग चैनल की कंडीशन आप चेक कर सकते हैं, ये एग्जिस्टिंग सर्वे बेस्ड है और जो अर्बन चैनल है उसकी ये कंडीशन थी। उसके बाद इसका लाइनिंग का हमने डिज़ाइन किया और डिज़ाइन सेक्शन इसका ये बन रहा है, ठीक है जी। और इस सेक्शन के थ्रू हम जितनी भी फिलिंग रिक्वायर्ड है, कटिंग रिक्वायर्ड है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट से वी कैन कंप्यूट हियर। ये हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन शो हो रही है, ट्री लाइंस शो हो रही हैं और ROW इसमें शो हो रहा है। कंक्रीट के लिप की विड्थ ये है 1 फीट, जो मैंने अर्लियर आपको कहा था वो ये है। और ये इसका डॉवल शो हो रहा है, टोटल बैंक की विड्थ 17 फीट है और ये नॉन पेट्रोल बैंक इसकी विड्थ 12 फीट है। ये तमाम लेवल्स और ईच एंड एवरी एस्पेक्ट से ईच एंड एवरी पैरामीटर इज गिवन हियर इन दिस क्रॉस सेक्शन। Now I will try to explain its execution methodology. अगर हमारी चैनल, if we are dealing with perennial flow, अगर हमारी चैनल पेरिनियल है तो उसके लिए मैंने अर्लियर भी शायद बताया आपको कि उसके लिए हम डाइवर्शन चैनल प्रोवाइड करते हैं फॉर अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई। क्योंकि मेन चैनल में हमने एग्जीक्यूशन जब करवानी है तो उस पर हमें वर्केबल स्पेस चाहिए और वो कंसिडरेबल टाइम के लिए चाहिए। उस कंसिडरेबल टाइम तक हम उसको चैनल को की सप्लाईज को बंद नहीं कर सकते। तो उसके लिए सेपरेट, हेलो आवाज नहीं आ रही? हेलो, अच्छा सॉरी। शो हो रही है अब आपको? ओके। अच्छा, इन केस ऑफ पेरिनियल चैनल वी नीड टू इंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई। जिस चैनल पे हमने वर्किंग करनी है तो जाहिर है हमें उसके लिए वर्केबल स्पेस चाहिए और कंसिडरेबल टाइम के लिए चाहिए। तो फॉर दैट टाइम उसकी हम सप्लाईज को बंद नहीं कर सकते। अनइंटरप्टेड सप्लाईज के लिए हम डाइवर्शन चैनल प्रोवाइड करते हैं और डाइवर्शन चैनल का डिज़ाइन सिमिलर अर्दन चैनल वाला डिज़ाइन है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। और ये चूंकि टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, इसकी मिनिमम बैंक्स की कंपैक्शन 85% सजेस्ट की जाती है। अगर इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ डाइवर्शन चैनल, अगर बड़ी चैनल की डाइवर्शन है तो उसकी कंपैक्शन को हम अप टू 90% भी कर सकते हैं। आज अप टू 50 क्यूसेक्स we can provide 85% compaction. At the same time, जब फिर हम जो हमारी कंसर्न चैनल है उसकी हम वेजिटेशन उसमें अगर हुई है तो उसकी रिमूवल है, इसको इंश्योर करेंगे प्रायर टू एग्जीक्यूशन ऑफ एनी एक्टिविटी। In case of channel having bed width equal to 8 feet or less than 8 feet, उस केस में हम उसके इंटायर प्रिज्म की इनिशियल फिलिंग करवाते हैं। और जिन चैनल्स की बेड विड्थ मोर देन 8 फीट है उस 4 फीट इनर साइड फ्रॉम डिजाइन सेक्शन कंप्लीट चैनल की प्रिज्म की फिलिंग उसमें हम सजेस्ट नहीं करते। और ये फिलिंग ऑफ प्रिज्म इन लेयर्स and thickness of each layer should not be more than 9 inches, and we ensure compaction of each layer 90% compaction modified Ashton-Proctor compaction. After ensuring compaction of prism filling, उस prism की फिर हम cutting करवाते हैं as per design section, और cutting के साथ उसकी formation, dressing and preparing subgrade की activity चलती है। और वो cut material जो है that can be used over banks. After ensuring design section और उसकी स्लोप को इंश्योर करने के बाद फिर हम उसकी प्रोफाइल्स की एग्जीक्यूशन करवाते हैं। पहला स्टेप है ये लेइंग ऑफ प्रोफाइल, और देन प्लस्टर इन बिटवीन प्रोफाइल विच इसकी थिकनेस 1.5 इंच है और इसकी सारी क्वालिटी कंट्रोल को चेक किया जाता है। देन बिटुमन कोटिंग ऑन टॉप ऑफ प्रोफाइल्स हैं। ये इसके स्टेप बाय स्टेप इसके हैं एग्जीक्यूशन के प्रोसीजर्स। आफ्टर बिटुमन कोटिंग
लेइंग ऑफ कंक्रीट लेयर इन लेइंग ऑफ कंक्रीट है, और ये कंक्रीट की एग्जीक्यूशन में इस बात को हम इंश्योर करते हैं कि इंटायर थिकनेस यूनिफॉर्म लेयर की हो, और जो भी हमारा डिज़ाइन मिक्स है वो हम इंश्योर करते हैं कि वही इधर ले हो रहा हो। देन उसकी क्योरिंग है, क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स हैं, एंड उसके रेक्विजिट टेस्ट हैं कंक्रीट के मटेरियल के, और वो एज पर QA/QC प्लान वी आर इम्प्लीमेंटिंग इट। देन फिलिंग ऑफ जॉइंट्स, कंस्ट्रक्शन जॉइंट है और उसका एक्सपेंशन जॉइंट है, उनके रेक्विजिट मटेरियल्स के साथ उसकी फिलिंग है, एंड कंप्लीटिंग द अर्थवर्क इन ऑन बैंक्स ईदर थ्रू बोरोड एरिया और थ्रू रीहैंडलिंग ऑफ डाइवर्शन चैनल। ये पूरी अर्थवर्क स्टेटमेंट इसकी डेवलप करते हैं, जितनी रिक्वायर्ड होती है अर्थ बैंक पे, या तो वो प्रिज्म फिलिंग से अगर पूरी हो रही है इट्स ओके, डाइवर्शन के बैंक्स को रीहैंडल करते हुए वो भी हम यूज कर सकते हैं, और अगर एडिशनल चाहिए तो दैट विल बी बोरोड फ्रॉम नियर बाय बोरो एरिया, एंड डिस्पोजिंग ऑफ एक्स्ट्रा अर्थ अगर कोई है तो उसको नियर बाय एरिया पे डिस्पोज ऑफ करना होता है। ये इसकी एग्जीक्यूशन मेथोडोलॉजी थी, और इन these are the figures, ये एक्चुअल पिक्चर्स हैं। ये अर्दन चैनल है, उसकी एग्जिस्टिंग कंडीशन आपके सामने है, उसमें उसके बैंक्स की कंडीशन, फ्री बोर्ड, टॉप विड्थ एंड वेजिटेशन हेयर, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट से ये आपके सामने इसकी कंडीशन है अर्दन चैनल की। ये सारी कंडीशंस, ये इसकी जो एग्जिस्टिंग कंडीशन सारी रिकॉर्ड की जाती हैं कंडीशन सर्वे में। उसके बाद फिर जब उसकी लाइनिंग डिसाइड होगी और लाइनिंग का डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है, तो फिर एग्जीक्यूशन के वक्त ये उसका अर्थवर्क विद इन द प्रिज्म इन प्रोग्रेस है। देन कटिंग ऑफ प्रिज्म, filled prism as per design section, and formation dressing of formation dressing and preparing subgrade as well as compaction in bed ongoing activity आपके सामने ये अर्थवर्क की है। और ये इस वक्त जब भी इसकी स्लोप की कंपैक्शन अगेन चेक की जाती और बेड की कंपैक्शन अगेन चेक की जाती आफ्टर कटिंग, और पूरा इसका रिकॉर्ड साइट पे भी और ऑफिस में भी रखा जाता है। बाद नेक्स्ट एक्टिविटी ये कंपैक्शन टेस्ट लगा रहे हैं। ये साइट पे कोर कटर मेथड एस्टो 180D के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कंपैक्शन इम्पैक्ट स्पीडी मॉइस्चर आफ्टर ensuring compaction in bed and slope, laying a profile है, हर प्रोफाइल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मिनिमम 10 फीट है। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल प्रोफाइल्स हैं। इन केस आवर बेड विड्थ इज मोर देन 10 feet, then we have to provide longitudinal profiles along the edges and at the center as well. और इन्हीं प्रोफाइल्स के ऊपर कंक्रीट के पैनल्स का स्टार्ट और एंड होता है और वो इसी के ऊपर रेस्ट करते हैं। इधर भी ये प्रोफाइल वर्क आपको शो हो रहा है। देन प्लस्टर्स 1.5 इंच थिकनेस की प्लस्टर की लेयर एज अ लीन और ब्लाइंडिंग लेयर ये प्रोवाइड की हुई, और बिचुमन कोटिंग ऑन टॉप ऑफ प्रोफाइल ये इन प्रोग्रेस है। इलोंगेटेड प्रोफाइल पे भी बिचुमन कोटिंग होनी है, वो आपको इस फिगर में शो हो रही। इसके बाद लेइंग ऑफ कंक्रीट इन अल्टरनेट कंक्रीट इनिशिएट की जाती है पहले स्टेप में, और आफ्टर लेइंग ऑफ एट एडिक्वेट लेंथ रिमेनिंग पैनल्स की फिर एग्जीक्यूशन की जाती है। ये बाकी रिमेनिंग पैनल्स उनकी एग्जीक्यूशन इन प्रोग्रेस है। और ये जॉइंट्स, ये आपका एक्सपेंशन जॉइंट है, ये प्रोवाइड किया जाता है एवरी 100 फीट पे, और कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स एवरी 10 फीट पे। और फिर इनकी जॉइंट फिलिंग है, क्योरिंग एंड देन फ्लो ऑफ वाटर विद इन दी चैनल। ये भी क्योरिंग की जा रही है प्लग करके, और जस्ट इसकी लाइनिंग कंप्लीट हुई है। अर्थवर्क का बैंक से इसका भी होना है।
इट्स अनदर एग्जांपल जिसमें ये लाइनिंग की कंडीशन आपके सामने है। और इसमें मैं एक बात आपको और कहता चलूँ कि डिज़ाइन क्राइटेरिया में मैंने एक्सप्लेन किया है कि 50 क्यूसिक्स की चैनल्स आर ऑलवेज प्रेफरेबल फॉर लाइनिंग इन ईदर जोन। ये ऐसे नहीं है कि बड़ी चैनल्स को की लाइनिंग हम नहीं कर सकते। क्राइटेरिया हमें ये कहता है कि इफ इट इज रिक्वायर्ड टू लाइन द बिगर चैनल्स, अगर साइड कंडीशंस हमारी ऐसे हैं तो वी कैन टेक अप लाइनिंग ऑफ चैनल्स हैविंग डिस्चार्ज मोर देन 50 क्यूसिक्स। उसके लिए ये सजेस्टेड किया जाता है कि हम उसका इकोनॉमिक एनालिसिस करें इन बिटवीन कंक्रीट लाइन सेक्शन एंड कंक्रीट साइड प्रोटेक्शन, whichever option is economical that may be adopted for channels having discharge more than 50 cusics. So this is all about from my side. Any question? If you have, you may raise questions. Sir, we have two questions. The first is, does lining a channel affect the charging capacity for the underground water table, and is it significant? मकबूल साहब, नासिर मकबूल सर। सर मैंने नोट किए हैं क्वेश्चंस, उसमें से एक क्वेश्चन है, डज लाइनिंग, जी बताइए। Does lining a channel affect the charging capacity for the underground water table, and is it significant? Okay, मैं cement sand bitumen ratio है. I just want to ask, is this kind of sealant considerations हैं, ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया? इसका एग्जैक्ट स्टैंडर्ड मैं आपको बता दूंगा। ये सपोर्ट करता है बीएस को, और ये हमारी प्रैक्टिस में भी है, और very well. Joint. Any other question? क्योंकि थोड़ी सी डिस्टॉर्शन, कोई टेक्निकल ग्लिचेस हैं, शायद आपकी आवाज सही तरह से पास ऑन नहीं हो सकी। अगर आप काइंडली दोबारा से इलैबोरेट कर दें। The key may be provided to avoid superficial erosion on the sides of banks. Yes, key can be provided, लेकिन बैंक्स के ऊपर इन एक्चुअल हमारा जो लाइनिंग के केस में वी आर प्रोवाइडिंग, यू नो, मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ, कंक्रीट लिप। कंक्रीट लिप को फिर फुली हम कवर करते हैं अर्थवर्क से। अर्थवर्क भी उसमें शो हो रहा है। इसमें आप देखें, ये कंक्रीट लिप है, और फिर डॉवल और जो हमारा कंक्रीट लिप के ऊपर फर्दर 6 इंच का हम फ्री बोर्ड दे रहे हैं अर्थवर्क में, और वो उसको प्रोटेक्ट रखता है, कंक्रीट को भी और फर्दर इरोजन से भी प्रोटेक्ट रखता है। लेकिन लाइनिंग के केस में हमारा क्राइटेरिया यही है, और ये सक्सेसफुल है, कि हम उसका कंक्रीट लिप प्रोवाइड करते हैं 1 फीट फॉर चैनल्स हैविंग डिस्चार्ज लेस देन 100 क्यूसिक, जो क्राइटेरिया में है, और फिर फर्दर 2 फीट भी प्रोवाइड करते हैं उसमें। So next question, between two reaches, how much bed width and discharge difference is allowed? Between two reaches, how much bed width and discharge difference is allowed? Actually, जो रीच भी हम सिलेक्ट करते हैं उसका ये हमें जो उसका डिस्चार्ज है इक्वलाइज्ड होना चाहिए, यानी कि मोर और लेस सिमिलर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज की वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। जितने भी उस रीच में आउटलेट्स हैं, उन आउटलेट्स का हम डिस्चार्ज कंप्यूट करें, और वो आउटलेट्स जो हैं वो उसको देखें कि वो 3 to 4 क्यूसिक्स की रेंज में है, तो इट इज़ ओके। और फिर कोई ऑफ टेकिंग चैनल है तो वो उसमें ऐड ऑन हो जाती है। उसमें यह है कि हमें इसको मुख्तलिफ ट्रायल्स करने पड़ते हैं इसमें, और एडवाइजेबल ये है कि हर आउटलेट के बाद हम देखें कि कितना हमारा FSL डिप्रेस हो रहा है, और फिर जो नेक्स्ट आउटलेट है
वो उस डिप्रेस्ड FSL में उसका वर्किंग हेड अगर पूरा है तो उस आउटलेट को भी हम उस रीच में कंसीडर कर सकते हैं। इसीलिए एडवाइजेबल ये है कि रीच बहुत लेंथी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत शॉर्ट भी नहीं होनी चाहिए, और क्योंकि ये भी प्रैक्टिकेबल नहीं है कि ये आउटलेट जो है हमारे रीच हम हर आउटलेट की चेंज करें, ये भी एडवाइजेबल इसमें नहीं है। Okay. Okay, sir. Next question था. Sir, as you mentioned in lining joint detail, that cement, sand, bitumen ratio is used as joint sealant. I just want to ask, is this kind of sealant being supported by ASTM, BS, or any other standards or an alternate local arrangements? इट्स अ गुड क्वेश्चन। ये मैंने इसका आंसर पहले दिया है कि ये इसमें जितने भी हमने कंसिडरेशंस की हुई है वो किसी ना किसी स्टैंडर्ड्स को मीट विद करती हैं, ठीक? ये जॉइंट सीलेंट और जॉइंट फिलर ये दोनों, BS को भी इसका मैं स्टैंडर्ड आपसे लेटर ऑन शेयर भी कर लूँगा, ये मीट विद करती हैं और ये हमारी प्रैक्टिस में भी हैं और ये सक्सेसफुली वी आर इम्प्लीमेंटिंग इट और इनका रिजल्ट्स भी सक्सेसफुल है। अदरवाइज जॉइंट सीलेंट्स और जॉइंट फिलर्स की और भी बहुत डिटेल्स हैं, लेकिन ये सूटेबल अरेंजमेंट है हमारी लाइनिंग के केस में, और ये उसको अलाउ कर, सीपेज को भी अलाउ नहीं करता जॉइंट सीलेंट, और वेजिटेशन को भी अलाउ नहीं करता है। ये टेस्टेड है। ओके सर, अभी हमारे अगर क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। प्रॉपर अगर कोई और क्वेश्चन करना चाहे तो प्लीज काइंडली रेज योर हैंड और इनबॉक्स योर क्वेश्चन। आई थिंक सर इट्स ओवर। मेरे ख्याल में कोई और क्वेश्चन आ नहीं रहे। फीडबैक फॉर्म में सबसे कहूँगी काइंडली मैंने लिंक शेयर कर दिया है, फीडबैक फॉर्म लाजमी जो है वो फिल करें। ओके सर, ये क्वेश्चन एक आया है, हाउ कैन वी रिड्यूस सीपेज विदाउट लाइनिंग? लाइनिंग जो है ये इम्परवियस मटेरियल नहीं है, ये सीपेज को रिड्यूस जरूर करता है। इनिशियली रेट ऑफ सीपेज इसमें रिड्यूस होता है, लेटर ऑन सीपेज रेट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, लेकिन स्टिल ये अर्दन सेक्शन से इसका रेट कम ही होता है। लाइनिंग इज नॉट मेंट टू कंट्रोल सीपेज, इट कैन रिड्यूस सीपेज। और जो मुख्तलिफ स्टडीज हैं उसमें ये शो करती हैं कि अर्दन चैनल के केस में जो सीपेज रेट है वो अप टू 5.5 क्यूसिक्स पर मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ वेटेड पेरीमीटर है, और अगर हम उसकी लाइनिंग कर देते हैं तो वो रेट जो है वो 1.5 क्यूसिक्स पर मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ वेटेड पेरीमीटर पे आ जाता है। मीन के अबाउट 4 क्यूसिक की सेविंग इसमें होती है, जायका की स्टडीज भी यही कहती हैं। और इसके अलावा जो अगर सीपेज को अगर हमारी चैनल बहुत हाई फिलिंग में है तो उस केस में हम अदर सीपेज कंट्रोल मेजर्स लेते हैं, जिसमें जियो मेम्ब्रेन्स हैं, जियो टेक्सटाइल हैं, कपल्ड विद कंक्रीट लाइनिंग। ये भी हम ऑलरेडी हमारी प्रैक्टिस में और एग्जीक्यूट कर रहे हैं, केस टू केस जिधर भी अलाउ हो वो हम करते हैं। ओके सर, एक क्वेश्चन है, इफ अ डिस्चार्ज इज मोर देन 50 CS, how we will perform economical analysis between the two? Yes, it's a good question. If our discharge is more than 50 cusic, हमें उसमें 2 एक्सरसाइजेस करनी होती हैं, क्योंकि हमारे पास सारा एग्जिस्टिंग डेटा भी अवेलेबल है, लास्ट डिजाइन डेटा भी अवेलेबल है। इन डेटा को यूज करते हुए हम उसके 2 डिजाइन परफॉर्म करेंगे, और उस लाइनिंग का डिजाइन अलग से करेंगे और कंक्रीट साइड प्रोटेक्शन का डिजाइन अलग से करेंगे। कंक्रीट साइड प्रोटेक्शन के डिजाइन में एक एडिशनल चीज होती है जिसको हम कहने टो वाल कहते हैं या कट ऑफ वाल यू कैन से, वो भी उसमें प्रोवाइड करनी होती है, जिसके ऊपर कंक्रीट पैनल आके रेस्ट करता है। तो ये कंप्लीट दोनों का डिजाइन करके दोनों की एस्टिमेशन करनी पड़ती है, और जो ऑप्शन इकोनॉमिकल हो वो हम अडॉप्ट करते हैं। अब जो इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारी अगर रीचेस एक्सेसिवली स्कावर्ड हैं तो हमें एक्चुअल स्कावरिंग देखनी पड़ती है, और फिर स्कावर को कैलकुलेट भी करना पड़ता है, विच एवर वैल्यू इज हायर, वो वैल्यू को लेते हुए हम उसकी टो वाल को हमें डिजाइन करना पड़ता है प्रॉपर, और उसका स्टेबिलिटी एनालिसिस भी करना पड़ता है, और उसके ऊपर फिर ये हमारा लाइनिंग प्लस पूरा बैंक उसके ऊपर रेस्ट कर रहा होता है, और वो अच्छा खासा उसका मैसिव डिजाइन बन जाता है। स्कावर्ड रीचेस, इन दैट रीचेस मोस्टली जो हमारी क्रीड साइड प्रोटेक्शन है वो अनइकोनॉमिकल हो जाती है, लेकिन हमें दोनों डिजाइन करने पड़ते हैं और उनकी एस्टिमेशन करके वी कैन कंप्लीट आवर एनालिसिस, और उस सूरत में वी कैन डिसाइड
decide which option is better. Okay. So next question is, what is the criteria of lining thickness? क्राइटेरिया में ये गिवन है कि अगर if our discharge यानी channels having discharge less than 300 cubic, we can provide 3 inch thickness. 3 inch thickness इसलिए है कि ये लाइनिंग हमारी हर एंड से सपोर्टेड है, ठीक है, और इसमें टेंशंस इन्वॉल्व नहीं होती, और इसलिए ये 3 इंच थिकनेस हर एंड से नीचे वेल कंपैक्टेड बेड के ऊपर ये लाइनिंग हमारी सपोर्टेड है. 3 इंच थिकनेस सफिशिएंट फॉर चैनल्स having discharge 300 cubic, and for more than 300 cubic we can provide thickness up to 4 inches. ये मैंने क्राइटेरिया में एक्सप्लेन किया है पहले, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ. ये मैंने इस क्राइटेरिया में लिखा भी हुआ है. 3 inch thickness for discharge up to 300 cubic, and for more than 300 cubic we can provide thickness of 4 inches. और ये up to 400 cubic तक हम 4 इंच प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन क्राइटेरिया हमें यही कहता है, और हम 400 cubic तक की चैनल्स को ही लाइन कर रहे हैं इस वक्त. Okay, so next question is, what is the deviation limit in lining alignment is permissible? Just a minute. Okay, sir. मैं उसको देख लूं क्वेश्चन को पहले. क्या क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए. जो प्रीवियस वन या जो भी मैंने सर कॉल किया था, नहीं, जो अभी आपने बताया, व्हाट इज द डेविएशन लिमिट इन लाइनिंग अलाइनमेंट इज परमिसिबल. जी जी, इसमें जो हमारी लाइनिंग अगर हम एग्जिस्टिंग चैनल्स पे कर रहे हैं तो इट इज एडवाइजेबल, मोर एडवाइजेबल को जो हमारी एग्जिस्टिंग चैनल की अलाइनमेंट है हम एग्जैक्टली उसको फॉलो करें, क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग चैनल है हमारी, उसके ऊपर तमाम हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हैं और तमाम फीचर्स उसके ऊपर ऑलरेडी गिवन होते हैं, तो इट इज मोर एडवाइजेबल कि उसी अलाइनमेंट को फॉलो करें. अगर इफ देयर इज सम एनी कंस्ट्रेंट है अगर उसमें, तो उसकी डेविएशन, तो उसको डेविएशन को हम कैसे एक्सप्लेन करें, उसको हम माइनर सी डिफ्लेक्शन या माइनर वेरिएशन तो परमिसिबल है इन ईदर केस, लेकिन एक स्मूथ कर्व के थ्रू हम अलाइनमेंट को चेंज करें, एक एब्रप्ट कर्व के थ्रू ना करें. और वो दैट कर्व में भी अब उसके लिए थोड़ा सा एनालिसिस भी हम करके देख लें, जिसमें हमारा जो है फ्लो स्ट्रीम ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो और उसका इम्पैक्ट ड्यूरिंग एट द कर्व वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए. एक स्मूथ कर्व के थ्रू हम लाइनिंग की अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं, और इसकी इस तरह से कोई परमिसिबल लिमिट डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इधर वी आर हियर डीलिंग विद एग्जिस्टिंग इरिगेशन सिस्टम, उसमें ऑलरेडी हर लाइनिंग की, हर चैनल की अलाइनमेंट डिफाइंड है और हमें उसी को यूज करना होता है, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते थोड़ी सी. How can we reduce seepage without lining? It's a good question. सीपेज की रिडक्शन के लिए लाइनिंग के अलावा और भी टेक्निक्स हैं, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया कि आप जियो मेम्ब्रेन्स और जियो टेक्सटाइल को यूज कर सकते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन साइट टू साइट. और दूसरा ये कि पहले तो उसका जो हम मटेरियल एग्जिस्ट कर रही है उस मटेरियल के टेस्ट पहले देखें कि वो बहुत ज़्यादा पोरस परमिएबल मटेरियल तो नहीं है, उस मटेरियल को भी फिर चेंज करना पड़ेगा. अदरवाइज विदाउट लाइनिंग वी कैन प्रोवाइड जियो मेम्ब्रेन एंड जियो टेक्सटाइल, वो भी इन प्रैक्टिस है कुछ एरियाज में. As best efficient design is partially cutting and filling, but if channel is complete filling, in that case, what would be efficient design? In that case, it's a constraint. अगर हमारी चैनल फिलिंग में है, हमें तो अपने FSL को लेके चलना है. FSL गवर्निंग FSL जो भी होंगे उस FSL की बेस पे अगर हमारे NSL बहुत ही डाउन है और चैनल इंटायरली फिलिंग में है,
तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अर्दन चैनल के केस में अगर हम उसकी लाइनिंग कर रहे हैं, हमारी जो हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन है दैट मस्ट बी कवर्ड विद 2 फीट मिनिमम कवर। वो जब तक कवरेज उसकी होती नहीं है, हम उसकी जो बैंक विड्थ है उसकी थिकनेस एक लिमिट तक इंक्रीज करते हैं। उस केस में भी अगर हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन हमारी कवर नहीं हो रही तो फिर उसके लिए हम टो के ऊपर अर्दन पुश्ताज देते हैं। पुश्ता भी जो है वो भी उसकी भी डेप्थ टो से मिनिमम 2 फीट अबव होनी चाहिए और उस पुश्ता से फिर उस हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन को कवर करते हैं। अगर वो उसमें भी अगर हमारा लैंड एक्विजिशन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है इन दैट केस, तो फिर हम उसमें जियो मेम्ब्रेन कपल्ड विद कंक्रीट लाइनिंग वो प्रपोज करते हैं। उसमें फिर हमारी हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन भी कवर हो जाती है और अर्थवर्क भी रिड्यूस हो जाता है। Okay. So next question is geomembrane is also type of lining. What else option to reduce seepage without lining? सर मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है, जियो मेम्ब्रेन इज नॉट अ टाइप ऑफ लाइनिंग, इट्स अ जस्ट मेम्ब्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़ाहिर है उसकी मेंटेनेंस और ये चीज़ें पे कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। और इस बाय यूजिंग जियो मेम्ब्रेन के ऊपर फिर हम लाइनिंग फर्दर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज व्हाट एल्स ऑप्शन इज टू रिड्यूस सीपेज। हम सीपेज रेट तो पहले अपना कंफर्म करें कि हमारा सीपेज रेट उधर क्या है और हमें क्या कितना इसको रिड्यूस करना है। इन दैट केस मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है कि हमें उसके मटेरियल की क्लासिफिकेशन को देखना पड़ेगा कि चैनल जिस ट्रेन से गुजर रही है उधर मटेरियल किस टाइप का है। अगर उधर मटेरियल सैंडी है, पोरस मटेरियल है या जिसकी परमिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उस मटेरियल को भी फिर हमें डील करना पड़ेगा। ठीक है। और अदरवाइज फिर जो दूसरी ऑप्शंस मैंने बताई हैं आपको, वो हमें इस पे एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी। इट्स अ साइड टू साइड डिसीजन, साइड के मुताबिक हमें डिसीजन करना पड़ता है। ओके सर, अभी क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। द टॉपिक वाज वेरी वेल elaborated and audience also take interest in form of, we can say the answer question session was very good. So thank you so much once again. हम ट्राई करेंगे कि स्लाइड्स को भी अगर ऑडियंस के साथ शेयर कर दिया जाए ताकि वो फ्यूचर में अगर उन्हें कहीं ज़रूरत पड़े तो वो भी हम शेयर कर देंगे। बहुत शुक्रिया सर। किसके अगर कोई क्वेश्चन और है तो कर लें, अदरवाइज फिर हम सेशन को एंड कर देते हैं। सर प्लीज़ अगर कुछ आप एंडिंग नोट्स कुछ देना चाहें। अगेन थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। इसमें स्लाइड्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ और अप्रूव्ड डिज़ाइन क्राइटेरिया अगर किसी को चाहिए उसमें और भी ये मैंने इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको सारे एलेबोरेट किए हैं और सारा क्राइटेरिया ऑलमोस्ट एक्सप्लेन भी किया है। अगर आपको अप्रूव्ड फॉर्म में विद साइंस अगर किसी को चाहिए तो वो भी प्रोवाइड किया जा सकता है। Thank you very much to all Thank of you you. so much sir, thank you so much from my to my audience. Jazakallah. Inshallah see you in next Thursday for our upcoming webinar. Thank you so much. Allah Hafiz. Thank you again.